Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain and elaborate about respiration and breathing. Breathing and respiration. Today I will cover this topic for grade 7, grade 8, grade 9 and grade 10. I will use some Urdu words so that the junior students of grade 7 and 8 may also understand the concepts and understanding of respiration and breathing. What is breathing and what is respiration? Breathing is just inhale gases into my body or into human body and exhale. Inhale and exhale. Take gases into your body and to pump or get rid of these gases out of your body. This is called breathing. Kindly observe me. This is just breathing. This is not respiration. सांस लेने का अमल ये है सिर्फ, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है इसके बारे में हमें डिटेल से देखना होगा. रेस्पिरेशन एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में आपके सेल में द स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इन आवर सेल, respiration takes place there. Actually respiration is burning of food, the glucose, the food particles, that is burning of that food particle. मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को mostly I say that it is a kitchen which provide us energy, by the burning of food. I am going to explain about it. The human respiratory system, when it is discussed, first of all we will discuss about the pumping system, the pumping machine which take gas into and out of our body, that is called lungs. These are lungs. This is the pump. ये सिर्फ गैस को हमारी बॉडी में लेकर जा रहा है और इसको बाहर निकाल रहा है. इसका जो लेफ्ट लोब है ये मेरी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. लेफ्ट लोब, इसमें देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू लोब्स ऑफ lungs and there are three lobes on my right side, 3 on right side and 2 on left side. When I exhale gases, it passes into my body from nostrils and from mouth and from nostrils, and it comes to voice box. This is voice box, the box that is on your gullet. This is voice box. Then this air passes to this. This is the front side is called trachea. This is produced by C-shaped rings. C-shaped rings help it to maintain its structure and shape. If there are not C-shaped rings, the pipe, the trachea, it will close, it will shrink. Then this trachea is divided into bronchi. These are bronchi. And then it is divided into bronchioles, again branches, and branching continues again and again. When we take in air, O2 comes in and we exhale or pump out or get rid of these gases, CO2 is exhaled from our body. The exchange of these gases takes place in alveoli. Alveoli are just balloons, small balloons, clusters of small balloons. Gases, when come to these ends, capillaries, blood capillaries, these are present here, and oxygen rush to blood capillaries. These are blood capillaries. Oxygen comes to, this is the structure of the balloon. Imagine this is balloon structure. This is balloon structure. Oxygen diffuses to blood. This is blood. This oxygen goes to mitochondria. This is mitochondria. Respiration takes place here.
This is our cell structure. Cell. These are alveoli. These are blood veins. These blood veins carry CO2 to our mitochondria. Here burning takes place, burning of food. From where this food comes in our body. Actually, when we eat anything, then come to alimentary canal. This is alimentary canal: mouth, esophagus, stomach, duodenum, small intestine, large intestine. From small intestine, imagine that, from small intestine, duodenum, the structure is small intestine. This is called large intestine. I will not go in detail to explain the process of digestion and respiration. Actually, digestion takes place of food. This food from this, here there are alveoli, finger-like projections, and these alveoli are covered with blood capillaries, just like alveoli. From here, food comes to, this is blood. Food, glucose, food particles from these alveoli of small intestine. These food particles also come to mitochondria. Food particles which are grinded, which are broken down, which are grinded into small particles which can diffuse to blood by these finger-like projections of small intestine. This is actually real digestion. हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में जैसे कहते हैं ना कि फूड का डाइजेस्ट हो जाना, एक्चुअली डाइजेशन है ब्रेक डाउन। लेकिन ये जो एल्वलाई से फूड जाएगी ब्लड में, ये है वो फूड जो हमारी बॉडी को लगेगी। तो ये फूड आती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड हेयर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एल्वलाई टू ब्लड। बोथ फूड एंड ब्लड सर्कुलेट टू माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ बर्निंग होती है, ये किचन है, इधर से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। ये मेरे स्किन की सेल है, यहाँ रेस्पिरेशन हो रही है। ये मेरे हेड है, ये मेरा हेड, यहाँ भी रेस्पिरेशन हो रही है। ये मेरे स्किन के सेल है, यहाँ भी रेस्पिरेशन हो रही है, इधर भी रेस्पिरेशन हो रही है। ऑन ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इधर रेस्पिरेशन हो रही है। रेस्पिरेशन के बारे में हम कोई ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते या ऐसा तस्वर पैदा नहीं कर सकते कि ये सिर्फ लंग्स में हो रही है। लंग्स तो एक पंप है, ये तो पंपिंग करेंगे एयर की। एयर जब अंदर आएगी तो ऑक्सीजन जाएगी किसमें? ब्लड में, और फूड जाएगी ब्लड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विल्ली से। तो एक्चुअली ये रेस्पिरेशन है, ये है वो रेस्पिरेशन जिसके बारे में आज मैंने आपको डिटेल से बताया। ये एक्चुअली रेस्पिरेशन जो है, इसके लिए दो रॉ मटेरियल आते हैं। एक फूड आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल्ली से, और दूसरा ऑक्सीजन है जो एल्वोलाई से आता है। ये लंग्स इधर पास करते हैं ब्लड में। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये एक्चुअली आपको याद रहना चाहिए। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये इसके लिए एक वैन है, ये एक व्हीकल है, गाड़ी है, जिस पर ऑक्सीजन सवार होता है और माइटोकॉन्ड्रिया पे आता है। लेकिन जो CO2 यहाँ पैदा होती है रेस्पिरेशन की वजह से, वो CO2 ब्लड के प्लाज्मा में चली जाती है, उसको कोई भी कैरी नहीं करता, ना रेड ब्लड सेल, ना वाइट ब्लड सेल, ना ही प्लेटलेट्स। वो सीधी ब्लड के प्लाज्मा में चली जाती है और वहाँ से हमारे लंग्स में आती है और इधर से एक्सेल कर दी जाती है। और इसको एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये CO2 एक्सेल ना की जाए तो ये पॉइजन है, इट मे कॉज डेथ इन आवर बॉडी। माय स्टूडेंट्स, ये जो सारा रिएक्शन मैंने अभी आपको शो किया, ये रेस्पिरेशन, ये है रेस्पिरेशन, ये मेरे सेल में हो रही है।
इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन हो रही है इसकी जो इक्वेशन है वो मैं बताता चलो आपको। ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स होती है। इसमें होता क्या है कि आपका C6H12O6 ये यूज़ करता है ऑक्सीजन को और चेंज हो जाता है CO2 में और वाटर में, और साथ ही इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर एक और बात बताता जाऊँ कि O2 की प्रेजेंस में ये बर्निंग हो रही है, ये रेस्पिरेशन हो रही है। आज मैंने आपको ये डायग्राम क्यों बना के दिखाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाली, मैंने क्यों बताया कि ये विल्ली है और यहाँ से फूड आएगी और यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, यहाँ रेस्पिरेशन होगी फूड की और किसकी, ऑक्सीजन की। फूड और ऑक्सीजन यहाँ बर्न होंगे, ये बर्निंग है, जहन में रख लें, रेस्पिरेशन बर्निंग है और सांस लेना जो है ये ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेशन नहीं है। और मैंने क्यों ये दो डायग्राम बनाई, मैंने ये दो डायग्राम इसलिए बनाई कि कभी आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं भी मिलती तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो फिर भी हो रहा होता है। इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया में हो रही होती है, ह्यूमन बॉडी में भी समटाइम ये टेक प्लेस हो जाती है। प्लांट्स वाटर लॉगिंग हो जाती है, बारिश हो गई है, प्लांट्स की रूट्स सबमर्ज हो गई हैं, या वाटर पूरे का पूरा प्लांट जो है वो डूब गया पानी में, तो वो कुछ दिन 3 to 4 days और 6 days और 30 days जितने भी उसके डेज होंगे वो सर्वाइव करता है। तो रेस्पिरेशन तो वहाँ भी हो रही होती है, फूड तो चाहिए होती है और एनर्जी भी चाहिए होती है, तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन आती ही नहीं है। लंग्स का निज़ाम तो इंसानों में भी बंद हो जाएगा, प्लांट्स में भी बंद हो जाएगा, वहाँ रेस्पिरेशन कैसे होगी, वहाँ ये ऑक्सीजन नहीं होती। इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वहाँ इथेनॉल क्रिएट होती है, CO2 पैदा ही नहीं होती, वहाँ पर वाटर के साथ इथेनॉल पैदा होती है। इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन देन इथेनॉल प्लस वाटर इज प्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन होना भी ज़रूरी है और ना होना भी ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ सर्वाइवल का इशू है और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, या आप वो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर सांस ले सकते हैं, तो फिर वहाँ पर रेस्पिरेशन तो होती रहेगी। तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है और ऑक्सीजन इसके लिए नेचुरल वे में मस्ट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होती है तो इथेनॉल जो अल्कोहल है इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये आपकी डेथ काज कर सकती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको ज़िंदा रखने के लिए कुछ डेज़ के लिए आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यही फ्यूचर है और यही एक्चुअली रियल लाइफ है, एनर्जी सोर्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन है। एक कंसेप्ट मैं यहाँ पर और बताता जाऊँ, हम जब एक्सरसाइज करते हैं या हम जब वर्क करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ क्यों जाता है? वाई द ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीज व्हेन वी डू एक्सरसाइज। एक्चुअली व्हेन वी डू एक्सरसाइज आवर ब्रेन इट फाइंड्स अ मैसेज। रेस्पिरेशन हो रही है, यहाँ रेस्पिरेशन, सारी डायग्राम को भूल जाएं, ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन हो रही है, CO2 या इथेनॉल इनमें से एक चीज़ पैदा होगी, बाकी सब कुछ हमें अब स्किप करना होगा। यहाँ रेस्पिरेशन हो रही है, CO2 पैदा हो रही है, हम एक्सरसाइज करें, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा फूड की बर्निंग होगी, फूड आएगी, ऑक्सीजन आएगी, बर्निंग होगी, CO2 पैदा होगी, ब्रेन को एक मैसेज आएगा, ऑक्सीजन आ रही है, फूड आ रही है, बर्निंग हो रही है और CO2 पैदा हो रही है या इथेनॉल पैदा हो रही है, इसको निकालो, इसको बॉडी में से निकालो, अदरवाइज इट मे कॉज डेथ। तो फौरी तौर पर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, क्योंकि प्लाज्मा ने लेके जाना है CO2 को, उसने पंप आउट करना है इसको, और ज़्यादा हमें एक्सरसाइज में फूड भी चाहिए क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ब्लड फ्लो फौरी तेज़ हो जाता है। वो जो मॉलिक्यूल हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर आ रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को एक्सपेल कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ये हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, और अगर हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल ना करे, एक्चुअली रेस्पिरेशन को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। मैं ये मैसेज आपको यहाँ पर देना चाह रहा था कि आपके रेस्पिरेशन के अमल को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो रेस्पिरेशन सेल में होती है, इसका तल्लक आपके लंग से नहीं है, इसका तल्लक ये इन आउट गैस से नहीं है, ये तो आपके सेल में हो रही है, ये तो आपके फुट में भी हो सकती है, आपकी इधर स्किन पाम में भी हो रही होगी, यहाँ रेस्पिरेशन हो रही होगी, तो इसका तल्लक लंग से नहीं है और इसका तल्लक ब्रेन से है। अगर मेरा हाथ ज़्यादा काम करेगा तो इसको ज़्यादा फूड चाहिए, तो ब्लड फौरी इसको फूड सप्लाई करेगा, ब्लड में होती है फूड, और
ये जो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होता है ये ब्रेन की तरफ से मैसेज आता है, ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। ब्रेन कहता है कि CO2 को हमारी बॉडी से निकालो, एंजाइम काम करना शुरू कर देते हैं कि बॉडी में CO2 इंक्रीज हो गई है, इसको निकालो, और बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई रिक्वायर्ड है क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस तेज करो, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी डेथ काज हो सकती है, बॉडी का निज़ाम रुक सकता है। तो ये रेस्पिरेशन जो ये है इसका लंग से या इधर स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका कोई रेफरेंस या रिलेशन नहीं। डियर स्टूडेंट्स, एक और कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग कैसे टेक प्लेस होती है। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट मी, पेट, ये जो आपको अब्डोमेन है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड, ये जो कुछ भी आप खाते हैं ये इसमें भरा हुआ होता है, और ये जो आपकी चेस्ट कैविटी है ये अंदर से एम्प्टी है। अगर ये चेस्ट कैविटी एम्प्टी है तो ये मेंटेन कैसे है? अल्लाह ताला ने इसको रिब्स के निज़ाम से, ये रिब्स हैं, यहाँ आपकी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं जो इसको मेंटेन रखते हैं। अगर ये रिब्स ना हो तो ये तो अंदर से खाली है। इसमें तो स्पॉन्जी लंग्स हैं, लंग्स तो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है ना, ये आपके बॉडी को, हेड को या आर्म्स को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। आपका वर्टिकल जो बोन्स का स्ट्रक्चर है, ये आपकी रिब्स हैं, ये इसको मेंटेन रखते हैं। अब सांस हम लेते कैसे हैं? सांस ऑक्सीजन अंदर जाने से या एयर के हमारी बॉडी में एंटर होने से आता है। तो ये खुद वो तो नहीं चला जाता, इसकी एक मैकेनिज्म है। एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं, इन गैस हमारी बॉडी में अंदर जाती है तो ये जाती खुद ब खुद नहीं जाती है, और ना ही इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन आपकी रिब्स के जो मसल्स हैं इनको कंट्रैक्ट करता है, इनको ऑर्डर देता है कि कंट्रैक्ट हो जाओ। अब ये कंट्रैक्ट होंगे, ये देखिए, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये रिब्स को खींचते हैं बाहर, ऐसे बाहर की तरफ। जैसे ये देखिएगा मेरा आर्म है ना, तो ये देखिएगा, ये यहाँ से कंट्रैक्ट होगा ना तो ये देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है, ये कंट्रैक्शन हुई है। जब रिलैक्स होगा तो आर्म नीचे चला जाएगा, ये जब कंट्रैक्ट होगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही ये जो मेरी रिब्स हैं, जब हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में एयर जा रही है, तो ये एयर अंदर हमारी बॉडी में खुद बहुत नहीं जा रही है, इसको लेकर जाया जा रहा है। ये रिब्स खुल गई हैं। अब डायाफ्राम एक्चुअली फूड की वजह से टमी हमारी जब फुल हो जाती है तो डायाफ्राम इस वे में होता है। ये मेरी बॉडी को देखिएगा, ये इस ऐसे डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड। डायाफ्राम एक्चुअली इस शेप में हो जाता है। ये हमारी टमी में फूड है, ये फुल है, इसने इसको पुश किया हुआ है क्योंकि ऊपर जो चेस्ट कैविटी है लंग्स के नीचे ये तो खाली है, तो चेस्ट कैविटी इधर से खाली है, फूड इसको पुश करती है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे डोम शेप हो जाता है। तो ये होती है इसकी रिलैक्स फॉर्म। जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये कंट्रैक्ट ऐसे करता है, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पर ये कंट्रैक्ट हो गया, खींच गया, ये होता है ऐसे। तो जब ये कंट्रैक्ट करता है मसल तो ऐसे जोर लगता है तो ऐसे ये स्ट्रेट हो जाता है, नीचे पेट की तरफ या एब्डोमेन की तरफ ये प्रेशर डालता है। तो ऊपर हमारी चेस्ट कैविटी खाली होती है, देखिएगा हमारा पेट बाहर की तरफ इसलिए आता है कि ये डायाफ्राम जो है हमारा सुकड़ रहा होता है, ये कंट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ब्रीदिंग इनमें कंट्रैक्शन होती है डायाफ्राम की भी और रिब मसल की भी। ये माइंड में रखें, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन होगी डायफ्राम की भी और रिब मसल्स की भी, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये सारे रिलैक्स हो जाते हैं। ये देखिएगा, ये ब्रीद इन है और अब ये ब्रीद आउट है, एक्सहेल है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बताए, रेस्पिरेशन के बारे में बताए। आई एम श्योर आपको रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करने में, रेस्पिरेशन के कंसेप्ट को क्लियर करने में आज जो मैंने आपको इधर डायग्रामेटिकली ये जो फ्लो चार्ट बनाया है इससे समझ आएगी। एक्चुअली सिर्फ ये रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रही है, बाकी ये सारी स्टोरीज हैं। ये तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और ये भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ये है सिर्फ रेस्पिरेशन जो इधर टेक प्लेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सेलुलर एक प्रोसेस है, ये ऑर्गेनेल्स में होती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। ये रेस्पिरेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोगों को मेरे इस रेस्पिरेशन और डाइजेशन और ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो मैंने कोरिलेशन बिल्ड किया है
और ब्लड का जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो इसको सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लेकर आता है, फूड को लेकर आता है, CO2 को एक्सपेल करता है। आई एम श्योर कि आपने मेरे इस फ्लो चार्ट से रेस्पिरेशन को बेहतर समझने की कोशिश भी की होगी और समझा भी होगा। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ feel free to comment in comment box. I will try to provide you suitable answers. If there are any inquiries, if there are any queries, if there are any problems, please comment in comment box. Like my video and share it and subscribe my channel. I am sure Pakistan can produce the future which is bright in technology and which is bright in science. My dear students, try to be a good scientist of future, try to be a good biologist of future. World is going beyond your thoughts, beyond your dreams. World is touching skies. Next level life, next level future. मैं आज के इस लेक्चर के बाद इतना ही बताना चाहूँगा कि टेस्ला की कंपनी का जो मालिक है, ये जो कारें बनाने वाली ये जो कंपनी है, इसके मालिक ने पिछले हफ्ते एक चिप इंट्रोड्यूस करवाई है जो ह्यूमन ब्रेन को रीड कर सकती है, इसको मेमोराइज कर सकती है। उन्होंने सुअर जो है उसके ब्रेन में इसका प्रैक्टिकली कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है और ये चिप एक स्मॉलर चिप है, ह्यूमन ब्रेन को अंडरस्टैंड कर सकती है, रीड कर सकती है, सेव कर सकती है ब्रेन का डाटा और ब्रेन में एम्बेड की जा सकती है। दुनिया बहुत आगे जा रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन योर स्टडीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियर पिक्चर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज and concepts and deliver better to your nation, deliver better to your future, make secure your future. 3 types are very much important for your future, that are technology, that is education and cash. You must be empowered with technology, science and cash. Thank you. Wish you best of luck. Allah Hafiz.